میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ آج ہمارے درمیان بہت دور سے تشریف لائے ہوئے ایک مہمان دکتور محمد کلوی جنہوں نے دکتورا کی ڈگری جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ حاصل کی ہے اور آپ کا تعلق کینیا سے ہے. بہت دور کے آپ رہنے والے، لیکن آپ یہاں ہمارے یہاں تشریف لے آئے ہیں. میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں اور اپنی جانب سے، ادارے کے ذمہ داران کی جانب سے اور تمام مجلس میں جتنے لوگ حاضر ہیں سبھی لوگوں کی جانب سے میں آپ کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں. دل کے گہرائیوں سے عقیدت پیش کرتا ہوں. اور آپ کے ساتھ آنے والے ہمارے اس ہندوستان کے ایک شہیر خطیب، داعی اور مبلغ اور ملت اسلامیہ کا کسک رکھنے والے ایک اہم شخصیت ہمارے درمیان شیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ آپ کے مرافق ہیں، آپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں. ان کے ساتھ اور بھی احباب ہیں. میں سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے سامنے اپنے توجیہی کلمات، گراں قدر نصیحت کے کلمات اور آپ اپنے ارشادات اور ایسی چیزیں جو ہمیں ہماری مستقبل کی زندگی میں ہماری طالبات کے لیے، بچیوں کے لیے اور یہاں سامعین کے لیے مفید تر ہوں گی، وہ اپنا کلمہ پیش کریں گے. اسی طرح میں دکتور عبدالرحمان صاحب کا جو یہاں ہمارے دکتور موجود ہیں اور دیگر مہمان کا میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے. آپ لوگوں نے اپنا وقت دیا اور دور سفر کی مشقت کو آپ نے برداشت کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہماری یہاں حاضری، ہمارا یہ اجتماع، ہمارا یہ ملنا جلنا اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور اس کو ہمارے لیے سعادت مند بنائے. اب میں اپنی بات لمبی نہ کرتے ہوئے میں دعوت دے رہا ہوں اپنے فاضل گرامی مہمان، انتہائی معزز اور مکرم داعی اور ایک بڑے ادارے کے اعلیٰ ذمہ دار فضیلت الشیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ کہ آپ اپنے گراں قدر پند و نصائح سے ہماری طالبات کو اور ہمیں تمام سامعین کو مستفید فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. حضرت مولانا محمد احمد صاحب المعروف بضامن علی صاحب حفظہ اللہ، مولانا ابراہیم صاحب مدنی حفظہ اللہ، اور ہمارے ساتھ دہلی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے کینیا کے دوست ڈاکٹر حسن کالولی حفظہ اللہ، ڈاکٹر ارقم رئیس سنابلی مدنی حفظہ اللہ، ڈاکٹر عبدالرحمن عبدالسلام سنابلی مدنی حفظہ اللہ، دیگر سامعین اور عزیز طالبات. حقیقت یہ ہے کہ دہلی سے یہ پروگرام ہمارا اچانک بنا ہے اور اس کی داستان میں آپ کے سامنے اس وجہ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس بات کی خبر ہو سکے کہ علم کا مقام اور اہمیت کیا ہے. دہلی سے ہمارا آنے کا اچانک پروگرام بنا اور مولانا محترم ضامن علی صاحب کے منجلے بیٹے مولانا عبید الرحمان صاحب سلفی حفظہ اللہ نے بار بار کہا کہ ہم نوگڑھ اسٹیشن پر آپ کے لیے گاڑی بھیجیں گے. لیکن میرے ذہن میں جو تصور تھا میں اس تصور کو باقی رکھنا چاہتا تھا. تصور یہ تھا کہ ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے سند اجازہ لینے کے لیے مولانا ضامن علی صاحب حفظہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، لہذا مولانا کی جانب سے کسی انداز کا اہتمام یا کوئی تکلف نہ کیا جائے. ہم طالب علم کی حیثیت سے یہاں حاضر ہونا چاہتے تھے اور ہوئے، لیکن اچانک پتہ چلا کہ یہ پروگرام ہے اور مولانا کی موجودگی میں کسی انداز کے نصیحت کلمات کہنا میں اپنے آپ کو اس بات کا اہل نہیں سمجھتا. یہ ہمارے لیے بہت شرف کا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے کہ عالم اسلام کے معروف محدث و فقیہ اور معروف عالم دین
मौलाना अहमदुल्ला साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द से हमको शरफ मुलाकात हासिल हुआ है और सनद इजाज़ा मिलने की देर है, जिसके लिए हम काफ़ी मुद्दत से इंतज़ार में थे। मौलाना अहमदुल्ला साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम हमारी बच्चियों को और मौजूदा लोगों को समझना चाहिए। मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि शेखुल कुल फिल कुल थे, 1902 में उनकी वफात हुई। उनके बारे में मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि उनके हाथ पर कमो बेश 22 लाख अफराद ने जमाअत अहले हदीस का मसलक कबूल किया, इल्म हदीस हासिल किया, और आज भी दुनिया के जिस भी खित्ते में जमाअत अहले हदीस की मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही हैं और मुख्तलिफ अंदाज की शख्सियात मौजूद हैं, वो मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी के शागिर्दों के शागिर्द हैं या उसी सिलसिले से जुड़े हुए हैं। इनकी एक छोटी सी मस्जिद थी दिल्ली में, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। जब हिंदुस्तान आज़ाद होने वाला हुआ, उससे पहले अंग्रेज़ों का तसल्लुत था, तो वहां से वो मस्जिद हटा करके अंदर बाजार के इलाके में मुंतकिल कर दी गई, क्योंकि रेलवे स्टेशन की तौसीह करनी थी। वो मस्जिद जब दूसरी शक्ल में बनी तो आज भी वो जगह और मकाम मौजूद है, जिस छोटी सी मस्जिद से बैठ करके मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 22 लाख तलबा को इल्म हदीस से बहरावर किया और इल्म हदीस उनको दे करके उनकी जिंदगी के अंदर एक नूर पैदा किया। तो ये सिलसिला जो है इल्म हदीस का, ये सिलसिला बड़ा कीमती सिलसिला है, और हकीकत देखी जाए तो मुझे फख्र है और इस बात पर खुशी है कि हमारी ये बच्चियां या इस इलाके के लोग यहां पर ऐसी शख्सियात के साथ जिंदगी गुजारते हैं। इनको इनसे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। इनकी अहमियत आप इससे समझ सकते हैं कि दिल्ली से और एक शख्सियत कीनिया से यहां आकर के इस बात की ख्वाहिश जाहिर कर रही है कि हमको मौलाना से शागिर्दी हासिल करनी है और सनद हदीस लेनी है। यह मकाम की बात है, अजमत की बात है, इल्म का मकाम यही है। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़ली अला साइरिल कवाकिब, कि आलिम की एक इबादत गुजार पर जो अहमियत है, मकाम है, वो वैसे ही है जैसे मेरी अहमियत आम सितारों के ऊपर है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े आलिम थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम और आपकी अहादीस मुबारका, आपके मुबारक अक़वाल से वाबस्ता अफराद, ये दुनिया के पाकीज़ा तरीन अफराद हैं और इनका मकाम सबसे ऊंचा मकाम है। हमें इस मकाम को समझना चाहिए। हमारी बच्चियां यहां मौजूद हैं, ये बच्चियां मुल्क का ही नहीं पूरी दुनिया का मुस्तकबिल हैं। इन बच्चियों ने अगर अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया तो ये बच्चियां आज किसी की बहन हैं, किसी की बेटी हैं, कल किसी खानदान की जीनत बन करके किसी की बीवी और भाभी, और आगे चल करके किसी की मां बनने वाली हैं। इनका मकाम जो है वो बाजार तक काम करने का मकाम नहीं है, बल्कि आलम इस्लाम के मशहूर आलिम दीन शेख सालेह फौजान हफिज़हुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया है, फला तख़्ज़अन बिल क़ौल, कि अपनी आवाज को फितना ना बनाओ, अपनी आवाज को इस तरीके से लोगों के सामने पेश ना करो कि उसके नतीजे में फितने और फसाद खड़े हों। आपका मकाम बहुत ऊंचा है। इस्लाम ने मर्दों के लिए आम महकामात का तस्करा किया है, लेकिन खवातीन के लिए उनके लिबास से लेकर के उनके रहन सहन तक, उनकी तालीम से लेकर के उनकी आवाज तक, उनके मकाम, उनकी जिम्मेदारियां, हर चीज के बारे में इस्लाम ने तफसील के साथ गुफ्तगू की है। और यही वजह है कि कुरान मजीद के अंदर लगातार आपको ऐसी आयतें और ऐसी सूरतें मिल जाएंगी जिनमें खवातीन के अहकामात बार बार बयान किए गए हैं। उनको बताया गया है कि उनको लिबास कैसा पहनना है, आवाज कैसी इख्तियार करनी है, लोगों से मिलना जुलना कैसे है, चलना फिरना कैसे है, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। जब इस्लाम ने इतनी तफसील के साथ आपके अहकामात जिक्र किए हैं तो इसका मतलब यह है कि शरई तनाजुर में
मुखातब आप मर्दों के मुकाबले में ज्यादा हैं, आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा हसास हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को महसूस कर लें तो आप माजी से अब तक की तारीख देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में खवातीन का जो किरदार था वो मर्दों का नहीं था। बाद के अदवार में मुहद्दिसीन, खुलफाए राशिदीन, ताबईन, तबे ताबईन और पूरी तारीख इस्लाम उठा करके देख लें, जो मकाम बच्चों की तरबियत में खवातीन का रहा है वो मकाम मर्दों का कभी नहीं रहा। मर्द हमेशा जाकर के दुनिया कमाता है, घर चलाने की फिक्र करता है, बच्चों को पालने की फिक्र करता है, बाहर की दुनिया के तजर्बात लेता है और अपने घर को तकवीयत और इस्तेहकाम अता करता है। लेकिन घर में बैठ करके इस खातून का दायरे अमल यह रखा गया है कि एक बच्चा जो पैदा होने वाला है, पैदा होने से पहले 9 महीने तक किसी औरत के पेट में रहेगा और पैदा होने के बाद भी 2 साल तक इस औरत के सीने से चिपका रहेगा, खून की शक्ल में इसका दूध पिएगा और परवरिश पाएगा। यह परवरिश और तरबियत में खवातीन का मकाम है। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन बच्चियों के सामने इतनी बात जरूर रखना चाहता हूं कि इल्म की अहमियत और मकाम को समझें, इल्म की फजीलत को समझें, उलमा की कदर करें, उलमा के मकाम को समझें और इस बात को समझ लें कि बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सफर करते हैं कि हमको इल्म हदीस मिल जाए, लेकिन वो महरूम रहते हैं। और आपको यहां बैठ करके ऐसी शख्सियात मिली हैं जिनसे आप इल्म हदीस हासिल कर सकती हैं। और इल्म के मकाम के बारे में इतना समझ लें, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से थे, आपके चचा के बेटे थे, बड़े बड़े सहाबे किराम उनसे शागिर्दी हासिल करने के लिए परेशान रहते थे। लेकिन उनको एक बार खबर हुई कि किसी सहाबी रसूल के पास एक हदीस है। उनके पास सफर करके गए, उस एक हदीस को सीखने के लिए जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो पता यह चलता है कि जिससे इल्म हदीस हासिल करना है या वो एक हदीस सीखनी है, वो आराम कर रहे हैं। अपनी चादर को अपनी तकिया बनाया, चादर को लपेट करके सर के नीचे रखा, उन्हीं के दरवाजे पर सो गए। जब वो बेदार होकर के बाहर निकले और देखा कि इतनी अजीम शख्सियत मेरे दरवाजे पर आराम कर रही है, तो उन्होंने माजरत की और फरमाया, आप मुझको हुक्म देते मैं आपके पास आकर के आपको इल्म सिखाता। लेकिन इल्म को सीखने का यह मकाम है और हम उसी तसव्वुर के तहत यहां हाजिर होना चाहते थे, लेकिन माहौल बदल गया। आपने देखा होगा इब्तिदा में हम सादगी के साथ दाखिल हुए, कोई तकल्लुफात नहीं थे। हम यहां पर सिर्फ मौलाना हफिज़हुल्लाह से मुलाकात करके सनद इजाजा लेकर के यहां से रुखसत होना चाहते थे। लेकिन दूसरी जानिब जमाअत के अहबाब ने अपनी उल्फत व मोहब्बत का इजहार किया, दूर दूर से लोग तशरीफ लाए, इस्तकबाल किया और भरपूर तरीके से इज्जत अफजाई की। इस वजह से हम मजबूर हुए कि आपके सामने 2 अल्फाज बोलें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कुरान और सुन्नत की पैरवी करने, मनहज सलफ को समझने, उसके मुताबिक जिंदगी को ढालने की तौफीक अता फरमाए। इस बात को समझ लें, यह मौजूदा दौर फितनों का दौर है। खवातीन के लिए फितने मर्दों के मुकाबले में ज्यादा हैं और खवातीन फितनों का मुकाबला करने में मर्दों के बिलमुकाबिल कमजोर हैं। इस वजह से खवातीन की जिम्मेदारियां मर्दों के बिलमुकाबिल ज्यादा हैं। मौजूदा दौर में फितनों की एक शक्ल यह है कि एक खातून, एक बच्ची किसी मदरसे से फारिग होती है, एक यूट्यूब चैनल बनाती है और उसके बाद उस पर अपने दुरूस व मुहाजरात पेश करती है। इस्लाम इसकी कतअन इजाजत नहीं देता। आपका दायरे अमल दुआत को तैयार करने का दायरे अमल है। आप अपने बच्चों को उलमा बनाएं, अपने घरानों की इस्लामी तरबियत करके घरानों के अंदर उलमा पैदा करें, यह आपकी जिम्मेदारी है। आप जिस मंबाओ मजदर पर काम करेंगी, जो आपकी जिम्मेदारी है, उस मंबाओ मजदर से निकलने वाले अफराद जो मर्दों की शक्ल में होंगे, वो दुनिया की क़यादत करेंगे। तो आप घर में महदूद होने के बावजूद एक बड़ी जिम्मेदारी पर फाइज हैं।
इसी वजह से आपको रब्बतुल बैत कहा गया है, घरों की मलिका कहा गया है। और आप फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा, अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा और दूसरी उम्महातुल मोमिनीन और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को पढ़ें, उनकी सीरत का मुताला करें, उनकी अहादीस को जमा करें। और मैं हर बच्ची से यह अपील करूंगा कि हर बच्ची एक डायरी बनाए, उसमें उस सहाबिया का नाम दर्ज करे जिसकी जिंदगी से वो सबसे ज्यादा मुतासिर है, और उस डायरी के अंदर उस सहाबिया की सारी चीजें नोट करे, जमा करे। उसकी जिंदगी के बारे में कारनामे, उसकी जिंदगी का उतार चढ़ाव, किन लोगों से उसने इल्म हासिल किया, उसका मुकम्मल नसब क्या है, उसकी अहादीस कौन कौन सी हैं, उस सहाबिया की जो हदीस मिले वो हदीस आप डायरी में दर्ज करें। अरबी जबान की हैसियत से उन हदीस को हल करने, लुग़वी लिहाज से हल करने की कोशिश करें। आपकी जबान भी मजबूत होगी, आपका इल्म भी मजबूत होगा। और इल्म शरीयत या हदीस का इल्म जिसको उलमा नूर से ताबीर करते हैं, वो नूर जब आपके जहन दिमाग में आएगा तो दुनिया की कोई ताकत न तलाक़े सलासा के बहाने से न किसी दूसरे बहाने से आपको कभी पस्त नहीं कर पाएगी। तो आपका मकाम बहुत ऊंचा मकाम है, आपकी अजमत बहुत अहम है, आपकी जिम्मेदारियां बहुत हसास हैं। लिहाजा अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करके आप जिंदगी गुजारें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दुनिया में और आखिरत में दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमाए, आपको तौफीक अता फरमाए कि आप यहां क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाओं की रोशनी में, मनहज सहाबा की रोशनी में जो इल्म हासिल करने के लिए आई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उस इल्म में पुख्तगी अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और हम जब तक जिए तब तक इस्लाम पर जिए, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। हजरत मौलाना जामिन अली साहब हफिज़हुल्लाह से माजरत के साथ कि अगर मेरी उम्र को दोगुना भी कर दिया जाए तो भी मौलाना मुझसे बड़े हैं, उनकी उम्र 100 साल से मुतजाविज हो चुकी है। इतनी बुजुर्ग शख्सियात के सामने अगर मुझको यह कहा जाए कि आप नसीहत करें तो मैं समझता हूं कि यह इंसाफ की बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको उलमा के मकाम को समझने और उनकी कदर व मंजिलत को समझने और उनका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मैं अपने इस मुअज़्ज़ज़ मेहमान, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मेहमान फ़ज़ीलतुल शेख मोहम्मद रहमानी हफ़िज़हुल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे लिए और हमारी बच्चों के लिए बहुत ही कीमती नसीहत से शायद काम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी बच्चियों ने आपकी बात को गौर से सुना होगा और जो बातें हमारे फ़ाज़िल गिरामी क़द्र मेहमान ने बताई हैं, इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल की ज़िंदगी में आप उस पर अमल पैरा होंगे। मैं अपने मोहतरम फ़ाज़िल गिरामी शेख मेहमान डॉक्टर हसन कलोली हफ़िज़हुल्लाह का और इसी तरह से शेख मोहम्मद रहमानी हफ़िज़हुल्लाह का, शेख अरकम रईस सनाबिली हफ़िज़हुल्लाह का, डॉक्टर अब्दुर्रहमान अब्दुस्सलाम हफ़िज़हुल्लाह का और दीगर यहाँ शुरका का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सभी मेहमानों का जिन्होंने ये मजलिस सजाई है, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए आप तमाम लोगों की कोशिशों को। और जिस तालीम की अहमियत के पेश नज़र हम लोग यहाँ हाज़िर हुए हैं, उसकी अहमियत को हमारे दिलों में अल्लाह ताला बैठाए। हम भी अपने असलाफ़ की तरह, हम भी अपने अफ़ाज़िल उलमा की तरह इल्म की कदर करें, इल्म को अपने सीनों में बैठाएँ और अपने सीनों को इल्म से मुनव्वर करें। और इसी तरह से जैसा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने फरमाया कि हमारी ज़िम्मेदारी जो है, हमारी ज़िम्मेदारी दीन की तबलीग है, तालीम के साथ साथ दीन की तबलीग है। बहुत ही अहम, बहुत ही ज़रूरी नुक्ता है, बड़ी ही अहम बात हमारे फ़ाज़िल मेहमान ने बताई है। उस पर अगर अमल करें तो इंशाअल्लाह दुनिया में उसका फ़ायदा हमें मिलेगा, सआदत हमें मिलेगी और आखिरत में भी हम कामयाबी से हमकनार होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को जो इल्म से जुड़े हुए हैं,
علم کی خدمت کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ علم کی خدمت کرنے، علم کو حاصل کرنے، علم کی روشنی کو عام کرنے اور گھر گھر تک اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے دور دور تک جہاں تک ہمارا امکانیہ ہے، جہاں تک ہماری بساط ہے، اپنی بساط کے حدود تک ہم اپنے علم کی روشنی کو پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہماری کوشش کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زامن علی إلى الإمام البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي قال قول الله تعالى ووضعنا الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم إلى الإمام مسلم بن الحجاج المشرقي رحمه الله تعالى قال النور باب على الايمان والاسلام وقدر على الساعه قال ابو سعيد جابر المشرقي رحمه الله بعون الله ابتدئ واياه نستكفي وما توفيقنا الا بالله جل وعلا. الامام ابي داود رحمه الله قال الامام رحمه الله حدثنا مسدد بن رهب حدثنا ابن يونس قال اسماعيل بن عبد الملك عن ابي الزبير بن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ القرار انطلق حتى لا يراه احد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب طهارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء لا تقرأ صلاة بغير الطهور. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوان سمعت بن حرب وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع بن إسرائيل عن سمعت بن سلمة بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ صلاة بغير الطهور ولا صدقة بالنذور. الطفل مکتب ہے کہ ہم آپ مدرسے کا ورنہ آپ کی دعا کی ضرورت ہے، آپ ایسا نہ کہیں شرمندہ نہ کیجیے۔ بخاری شریف کی روایت آتی ہے، اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا ایک گھنٹہ کا صبح یا شام کو نکلنا اللہ کے راستے میں جا کے سبیل اللہ خیر من الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت کی بھلائی یہ گھنٹے میں، دنیا اور آخرت کی بھلائی یہ گھنٹے میں۔ اور آپ نے اس کے بعد فرمایا وقاب قوس احدکم موضع قدم، اگر جنت میں قدم رکھنے کی جگہ مل گئی تو خیر من دنیا اور آخرہ، دنیا اور جو کچھ دنیا مجھ سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد تیسری بات آپ نے فرمائی طلاق من نساء اہل الجنہ، طلاق ریاست ما بینہما مولاد ما بینہما خیر من الدنیا۔ اگر وہ جنت کی عورت جھانک دے تو آسمان زمین کی فضا روشن منور ہو جائے، اور اگر وہ کبھی ایک ملائم ملازم تو آسمان زمین کی فضا معطل ہو جائے۔ اور بتایا یہ قیمت تو ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کی سر کی روحانی دوپٹہ دنیا اور دنیا جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے، یہ دنیا جو کچھ دنیا تو یہ تو اللہ ہی سمجھے کہ وہ کیسے کتنی مبارک ہے وہ دن۔ یہ گھنٹے کے اللہ کے راستے نکل جانا، دنیا جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے۔ صبح کو یا شام کو دو ہی وقت آتا ہے، اور ان کو جتنا مرتبہ مل گیا کہ وہ جھانک دے تو آسمان زمین کی فضا منور ہو جائے، معطل ہو جائے۔ اور یہ سر کی جو اوڑھنی ہے اس کی قیمت تو دنیا جو دنیا مومن اس سے بہتر ہے، تو اور مومن کے لیے اس سے بہتر ہے۔ تو ہمارے وقت بھی رہ گئی ہو، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ دین میں کامیابی عطا فرمائے۔
دین اور اللہ دیا الموت کریم النفاق ومليم من الرياء ولساني من الكذب اللهم إنا نافيا رزقا واسعا شفاء من كل داء اللہ تعالی ہم سب کو اسی بے ساری خدمت ہے الحمدللہ.